Welcome students, we are back and here I am with a new topic for you. Today I'll be discussing a very important part of physics, that branch of physics which deals with light. Light and physics, they are just like a body and a soul. So when we talk about physics and we have to study about light, that particular branch of physics in which we study about light is termed as optics. So light is basically a part of optics. Optics is a branch of physics in which we study different phenomena which light undergoes. Now, before I start with this, let me just tell you one thing. When we talk about light, light is such a common topic. You feel कि we have been studying about since our very basic classes. Second, third से भी आप पढ़ते हो कि photosynthesis में the sunlight is absorbed. That's a form of light, obviously. फिर हम पढ़ते हैं नहीं, we are able to see the things around because eyes are helping us and the light is entering into our eye. So वहाँ पर भी हम study करते हैं light related to sense organs. What actually is light? So light is a form of energy that gives us a sensation of vision. Light क्या करता है? It enables us to see the things around us. अब कैसे हमें दिखाई देती हैं चीज़ें? That we will be studying in detail one by one. Light, it's a form of energy which gives us a sensation of vision. Light has two basic natures. हर मैटर जो भी हमारे अराउंड एग्जिस्ट करता है उसका एक करेक्टरिस्टिक नेचर है. मीन्स उसकी अपनी कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण वो उस तरीके से रिएक्ट करता है. सो लाइट जो है, लाइट का हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड इट ट्रेवल्स एज अ रे. जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, जब हम लाइट को स्टडी करते हैं इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, कि particles they are making a line kind of thing and which is originating from some source moving out in one particular direction, giving it the name as ray optics. Another part where we study कि light जो है, because see जब हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो वो एक रे की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है जहाँ पर उसको कोई मीडियम भी मिल रहा है बीच में. क्वाइट पॉसिबल कि लाइट जो है वो हमारी विदाउट एनी मीडियम इन बिटवीन, कोई उसको मीडियम नहीं मिला हुआ, फिर भी एक डिस्टर्बेंस की तरीके से एक लेवल से लाइक सन से अर्थ तक आ रही है जहाँ इन बिटवीन इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, तो वहाँ एक डिस्टर्बेंस की तरह वेव की तरह मूव करती है. एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट वेव, वेव इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. सो हियर लाइट exhibits dual nature. This term you must know that light has dual nature. Sometimes it exhibits, means some of the properties or phenomena which we will be studying, they will be based on particle nature of light. There are various other phenomena which are based on wave nature of light. So abhi in our classes up to 10th we will be studying in detail about the particle nature, about the So we were studying about light. Light undergoes different phenomena. First one is reflection, refraction and dispersion. Now taking up these phenomena one by one, I'll be explaining first about reflection. Reflection क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखता है, all that is based on this particular part. When we talk about reflection, very clear that talking about reflection means reflection की first of all we will take up definition part. Bouncing back of light into the same medium. It is bouncing back of light in the same medium. That is reflection. Bouncing back of light in the same medium is reflection. And this generally happens through surfaces which are mirror-like. When I say mirror-like का मतलब क्या है? मिरर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? It is a plain, polished, smooth, shiny and opaque surface. We can take it as shiny or polished is one, so I can write it as PPSO. PPSO is plain, polished, shiny and opaque, क्योंकि smooth जो होगा that will be polished one. Polish करके उसे हमने smooth किया हुआ है. So this mirror is a plain, polished, smooth तो polished हो गया, shiny and opaque surface.
So PPSO is the feature of mirror. As a short form, you can just remember mirror की 4 features होंगी. Mirror always is like that. It is a plain, polished, shiny and opaque surface which reflects light. क्योंकि opaque है, इसलिए light में you have studied 3 types of materials are there: transparent, translucent and opaque. Transparent ones, they allow light to pass through. Translucent, they block a part of light. पूरा नहीं जाने देंगे, थोड़ा सा जाने देते हैं. And when we talk about opaque objects, so opaque objects, they block the light completely. They do not allow light to move from one medium into another. And as a result of it, it gets reflected back. वो वापस उसी medium में आ जाती है. I've written 2 terms here, regular and diffuse. Now I'll be taking up these 2 terms कि regular reflection क्या होता है and diffuse reflection क्या होता है. Regular reflection जो होगा ये आपका होता है plain surfaces से जो mirror like surfaces है, right? Mirror polished surface, इसलिए हमने ये नीचे की साइड पे दिखा दी polishing, and this is the top smooth surface from where the reflection will take place. एक light ray, single light ray, because it's a ray we need to show the arrow mark. This is the incoming light ray, so we call it as incident light ray, incident ray. Here at this point where it strikes the mirror surface, this is a point of incidence. When at this point surface के साथ आप 90 degrees का angle draw करोगे, this line is called as a normal, generally represented as n dash. और ये जो angle बना normal और incident ray के बीच में, this is called as angle of incidence, represented as angle I. Now when the light ray comes and strikes on this mirror surface or a polished surface, it gets reflected back in the same medium. ये इसी मीडियम की तरफ, अगर यहाँ फर्स्ट मीडियम था, मिरर से दूसरी साइड सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम में आई और फर्स्ट मीडियम में ही ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई. एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब आपने बेसिक रूल्स पढ़े हुए हैं, अभी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बताते हैं कैसे होता है. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, ये होती है इरेगुलर सरफेस से. सपोज करो आपके पास कोई एक सीमेंटेड फ्लोर है या कोई ब्रिक है जो थोड़ा सा इरेगुलर है सरफेस. मैं इस इरेगुलर सरफेस पे ये किंग्स अप एंड डाउन, हिल्स एंड वैलीज की फॉर्म में दिखा है. नाउ व्हेन अ लाइट रे कम्स एंड स्ट्राइक्स ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज इट इज स्ट्राइकिंग हियर, रफ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट लाइट रे आई. यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आई विल ड्रॉ अ नॉर्मल. अब आप सोच रहे होगे मैम ये नॉर्मल लाइन टेढ़ी क्यों बना रही है, ये तो 90 डिग्री नहीं दिख रहा. इन केस ऑफ रफ सर्फेसेस हम किस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो बताती हूँ, सो दैट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल बी क्लियर टू यू. जब भी आपके पास एक रफ सरफेस होगी तो रफ सरफेस के केस में जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई, सपोज करते हैं एक लाइट रे ये है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पे आप एक 90 डिग्रीज एंगल बनाओ टू द सरफेस एंड 90 डिग्रीज टू बी ड्रॉन. सपोज करो लाइट यहाँ स्ट्राइक करी होती, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 90 डिग्री ऑब्वियसली ऐसे नहीं आएगा, इट विल बी सरफेस के ऊपर. इस पॉइंट पे पहले मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगी. टेंजेंट होती है एक ऐसी लाइन जो सरफेस को सिर्फ एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई जाती है. तो इस टेंजेंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम 90 डिग्रीज पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. दिस बिकम्स द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये आपकी इंसिडेंट रे, ये बन गई आपकी नॉर्मल, और ये आपका हो गया नॉर्मल लाइन, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो अगर हमारे पास कोई पैरेलल बीम आ रही हो बट रफ सरफेस पे आ रही है, तो क्वाइट पॉसिबल कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड पैटर्न है, क्वाइट पॉसिबल क्या, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 100% कि रिफ्लेक्टेड पैटर्न हमें पैरेलल नहीं मिलेगा. क्यों, क्योंकि हमारे हर पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारे एंगल जो होंगे, रिफ्लेक्शन के एंगल्स वो वेरी करेंगे. आई एंड आर, आई इक्वल एंगल पे ही, मिरर लॉज तो फॉलो होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट I इक्वल्स टू R, सो R यहाँ गया. यहाँ पर हमारे पास सेम पैटर्न फॉलो नहीं होता. नाउ टेकिंग अप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये जो रिफ्लेक्शन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोला जाता है जिसे, दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सर्फेसेस. दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको एक फ्लैश लाइट की काइंड की इमेज मिलती है, मगर डिफ्यूज में एक प्रॉपर इमेज आपको दिखती है. आपको एक बोर्ड दिख रहा है, आपको वॉल दिख रही है, आपको मेरा हाथ दिख रहा है, कलर्स व्यू हो पाते हैं. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. कई बार आपने नोटिस किया होगा एक मिरर पे, सपोज करो आप व्हीकल चला रहे हो, आपको स्कूटी राइड कर रहे हो, स्कूटी के ऊपर एक आपका साइड मिरर में आप देखते हो किसी की घड़ी की बहुत ज़्यादा ब्राइट सी एकदम फ्लैश शाइन करती है.
दैट इज बिकॉज आपका वो जो मिरर सरफेस है वो वहाँ पर क्या कर रहा है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सन रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वहाँ वो स्पॉटलाइट हो जाती है और वो एकदम से फ्लैशिंग लाइट इमेज जो मिलती है, दैट इज ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लेके। व्हेन वी स्टडी अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं दो। फर्स्ट वन इज दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉज, लॉज का मतलब सब चीज़ों में फॉलो होने हैं। दिस इज द सरफेस, दिस इज द पॉलिश्ड साइड एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग, टॉप साइड इज द रिफ्लेक्टिंग साइड. A light ray is incident on the surface at this point. Here I am drawing a normal to the surface and this becomes the angle of incidence. This light ray will always, according to first law of reflection, we are now going to study laws of reflection. So according to first law of reflection, angle I is always equals to angle R. I equals to R हमेशा होता है, means this angle will be equal to this reflected light ray will move along the angle which is equal to this. जितने पे ये strike किया था उतने पे ही ये reflect back हो जाएगा. ये बन गया आपका first law. Second law क्या कहता है? Second law states that incident ray, normal and reflected light ray, incident ray, reflected ray and normal, these three they lie in same plane. कंफ्यूज नहीं होना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास क्या कंप्लेंट्स आती है, बच्चे क्या करते हैं, इंसिडेंट रे और इंसिडेंस एंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं. एंगल कौन सा है? ये एंगल है और ये रे है. रे सेकेंड लॉ में हमने बताना है रे के बारे में और फर्स्ट लॉ में हमने बताना है एंगल्स के बारे में. तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दीज थ्री दे आर इन द सेम प्लेन. क्योंकि ये प्लेन अगर मिरर का देखें तो इससे एक साइड पे रहेंगे, सेम साइड पे. यू कैन टेक इट कि ये सेम प्लेन में है. ये अगर ट्रांसमिट हो जाती नेक्स्ट साइड पर तो इसका प्लेन चेंज हो जाता. लेट्स टेक इट दैट वे. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. सो चाहे वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो चाहे वो इनसे आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, दोनों केसेस में प्लीज नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, चाहे वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा हो, दोनों ही फिनोमिनाज में लॉज होल्ड गुड. मीन्स दीज लॉज दे होल्ड गुड फॉर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होगा. देखो मैं आपको यहाँ पर कंपैरेटिव एक दोनों फिगर बना देती हूँ. ये हमने बनाई प्लेन सरफेस के लिए वेयर रेगुलर रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस. एक हम करते हैं जहां हमारे पास इरेगुलर सरफेस है. ये आया फर्स्ट लाइट रे, एक पैरेलल बीम ले रही हूँ, ये आई सेकेंड लाइट रे और ये आई एक थर्ड लाइट रे. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हर पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करके नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ. इस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका नॉर्मल बनता है एक ऑलमोस्ट इस तरीके से लाइन. बहुत ही छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है. अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही जाएगा एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग दिस पाथ. सेकेंड लाइट रे जो यहाँ आई, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ और नॉर्मल बनाती हूँ तो आई गेट दिस एज एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड I2 और इतने ही एंगल पे ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर चली गई यहाँ. ये हमारी थर्ड इंसिडेंट लाइट रे जो यहाँ पर नॉर्मल पे आई, इंसिडेंट पॉइंट पे आई, ये बन गया टेंजेंट और ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल. इस एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो गई और ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे 1 इसके साथ की रिफ्लेक्टेड रे 1, इंसिडेंट रे 2 और ये गई रिफ्लेक्टेड रे 2. यहाँ से ये लाइट रे आई, इंसिडेंट रे 3 आई एम राइटिंग और ये रिफ्लेक्ट होके गई रिफ्लेक्टेड रे 3. I1 R1, I2 R2, I3 R3. When you get to have this kind of reflection, यहाँ पर भी क्या मिलता है, यहाँ भी हमें एंगल I1 R1 के बराबर, I2 एंगल R2 के बराबर और I3 एंगल R3 के बराबर ही मिलता है. मतलब चाहे वो केस डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का हो चाहे वो केस रेगुलर रिफ्लेक्शन का हो, दोनों में ही लॉज hold good. Laws of reflection, they hold good
in both the cases, in regular as well as diffused reflection. So this was all about the reflection part. In my next lesson, I'll be taking up image formation by a plane mirror and its characteristics. Thank you.